Hello, students. Good evening. Today we will start our first lecture on physics. So, we will start from optics. We all know that boards are coming very near to us. So, most of the students are scared of it very much. So, please don't get scared too much. Yeah, I accept I have started this channel very late. But कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. आज से हम लोग फिजिक्स के लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे. काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो आप लोग सभी को एक कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो ये लेक्चर्स आएंगे ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे. ठीक है, ये लेक्चर्स क्विक रिव्यू के तौर पे दिया जाएगा ताकि कम टाइम में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें. इसीलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डोंट गेट फियर्ड ऑफ फिजिक्स, जस्ट enjoy फिजिक्स. लेट अस enjoy. So today we will start with a new chapter that is called optics. That is called optics. So in this chapter we will study some of the basic concepts that should be studied before solving questions and doing any other question sets, last year previous year questions. उन सभी को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा. कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते. इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा कंसेप्चुअल वे में भी समझेंगे और क्विक वे में समझेंगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, हमारे पास हमारे ऑप्टिक्स का ये चैप्टर है. ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑप्टिक्स जो होता है इसमें वी स्टडी अबाउट light. We study about light and its phenomena and its phenomenon, right? Most of the time we all have observed, but we haven't noticed this phenomena. And what is that phenomena? Dual nature of light. Light is of dual nature. लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर. इसका मतलब है एट अ सर्टेन टाइम लाइट एक समय पे वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक समय पे पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है. कहने का मतलब है कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लाइट के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, तो एट द एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लाइट को हम पार्टिकल भी कह सकते हैं और लाइट को हम वेव भी कह सकते हैं. कुछ फिनोमेना में लाइट वेव नेचर को शो करता हुआ पाया गया, कुछ फिनोमेना में लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता हुआ माना गया. तो हमारे इस छोटे क्लासेस के कंसेप्ट्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ दी phenomena are predominantly described by the particle nature of light and some of the phenomena are described by wave nature of light, right? तो हम लोग कुछ वैसे नेचर्स के बारे में पहले समझते हैं. तो ड्यूअल नेचर समझ गए कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डिस्क्राइब्स दैट at a certain period of time light behaves as a wave as well as a particle also. All right, so depending upon the nature, particle nature, we will study some of its behavior. So what should be the types of phenomena that light undergoes, that we will study today. So before, let us be very clear about refraction and reflection. Let us be very clear about these terms. बहुत सारे इस चैप्टर में मिसकंसेप्शंस होंगे जो अभी तक आप लोगों में एक मिथ की तरह होंगे. आज उन सारे मिथ को मैं दूर करने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से चैप्टर को समझें. सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन को समझना. रिफ्लेक्शन होता क्या है? इन्हीं दो कंसेप्ट के बेसिस पे हम लाइट के डुअल नेचर को भी एनालाइज कर पाएंगे. सो आई हैव स्टॉप दैट पर्टिकुलर टॉपिक डुअल नेचर and right from these two topics we will be continuing that particular topic, dual nature. Okay, so let us first understand what is refraction and what is reflection, right? In case of light,
Suppose we have two medium. All right, in case of light, suppose we have two medium, that is medium 1 and medium 2. One medium is water and another medium, we can say, let us this medium be air. And what is the medium 2? It is water. What did we observe? When light fall from a rarer medium to a denser medium, the refracted ray bends towards the normal. That means instead of going straight, light bends towards the normal. So how can we measure the angle of incidence and angle of refraction? To measure it, we need to draw a normal line. Here, मैंने इसे बनाया है. This is normal line that falls normally on the interface. Interface means ये वाला. Interface उसे कहते हैं जब किसी दो मीडियम को जो सरफेस डिवाइड कर दे, दोनों को सेपरेट करने में जो मदद करे, दैट इज इंटरफेस. दैट मीन्स ये एयर मीडियम है और एक वाटर मीडियम है, इस दोनों को जो सेपरेट करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ किए, दैट इज व्हाट? इंटरफेस. ऑलराइट. सो विद द नॉर्मल, the incident ray making an angle, that is called angle of incidence, and with the normal, the refracted ray making angle, and that is called angle of refraction. All right. Now the question arises, what is refraction? ये तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो इस फेनोमेना को बताना स्टार्ट कर दिया, बट रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट बेंड करता है. ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया. ठीक है. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल किया तो वो क्या होता है? बेंड कर जाता है. मतलब ओरिजिनली उसे जिस पाथ में जाना चाहिए था उससे बेंड कर जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरा और ये अगर मीडियम अलग नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता. बट यहाँ पे एयर से वाटर की तरफ ट्रैवल कर रहा है लाइट, तो मीडियम चेंज हो गया. अब मीडियम चेंज होने से क्या होता है कि मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग हो जाता है. ऑप्टिकल डेंसिटी इन द सेंस इस मीडियम का डेंसिटी कंपैरेटिवली इस मीडियम के डेंसिटी से कम होगा. तो इसे हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम, और इसे क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम. दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम. ऑलराइट. तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि when light travels from rarer medium to denser medium, instead of going straight, the incident ray bend towards the normal. So this incident ray now become the refracted ray, and the refracted ray is bending towards the normal. So what conclusion can we draw? The angle of incidence is greater than angle of refraction. That we know. Angle of incidence is greater than what? Angle of refraction. So basically this is refraction. Like refraction का मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे. Refraction is nothing but bending of light from one medium to another medium. शर्त क्या होना चाहिए? Optical density of first medium should be greater than or less than the second medium. मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में. तो ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी चीज़ को, हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा वॉल्यूम बनाते हैं दो. सपोज करते हैं दिस इज वॉल्यूम 1 एंड दिस इज वॉल्यूम 2. दोनों ही आपस में इक्वल है. बट अब इसके अंदर मैंने क्या किया? बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया. ऑलराइट. डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया. तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एनी इवेंट इनसाइड दिस वॉल्यूम V1 इज ग्रेटर. दिख रहा है?
इसके कंपैरिजन में इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर हम इसके डेंसिटी का बात करेंगे, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के एक यूनिट हिस्से को अगर कंसिडर कर लोगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस यूनिट हिस्से में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उस पर्टिकुलर बॉडी का, इंटायर बॉडी का जो वॉल्यूम हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम लोग डेंसिटी के टर्म में जानते हैं। लेकिन जब किसी भी ऑप्टिकल फिनोमेना के डेंसिटी का जब बात करते हैं, जिस भी मीडियम से कोई ऑप्टिकल फिनोमेना हो रहा है, ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब लाइट से रिलेटेड कोई भी फिनोमेना होता है, तब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलना, जो बहुत तरह के अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। पहला जिसमें रिफ्रैक्शन था, तो ये क्या हो गया, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि लाइट बेंड हुआ, दिस दैट। तो ये बेंड होने का जो कारण है वो है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या था, ज़्यादा था, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसे और एक टर्म से एक्सप्लेन किया जाएगा, बट वो अभी नहीं बोलूंगा, दैट वुड बी अ सस्पेंस। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ गया। तो ये तो हमारा हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में। केस को उल्टा कर दे तो क्या होगा, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आया तो द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से इस केस में बड़ा है। अब इसी केस को अगर रिवर्स कर दिया जाए, इसी केस को मैंने रिवर्स कर दिया, तो इस केस को रिवर्स करने में क्या होगा, मान लो कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करता है, तो क्या होगा, इसमें भी इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रेट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो गया, बेंड हो गया। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1. So what is the basic difference between these two event? Light is traveling from rarer medium to denser medium, और इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इस केस में क्या देखा, जब रेयर से डेंसर में आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉमन रिफ्रैक्शन। ये बात हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में अगर एंगुलर सेपरेशन के बारे में बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो अब रिवर्स हो जाएगा। मतलब नाउ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा बेस है। लाइट को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब मूविंग एड, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो लेट मी इरेज दिस बिकॉज इट मे डिस्ट्रैक्ट यू। सो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, सोच में कभी भी इंसान पढ़ सकता है कि ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, कि जब वो रेयर से डेंसर में आ रहा है और डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो वाई दिस रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देयर इज अ रीजन, द ऑप्टिकल डेंसिटी। वाई, रेयर मीडियम का डेंसिटी कम होता है और डेंसर मीडियम का ऑप्टिकली ज़्यादा होता है। तो इससे स्पीड ऑफ लाइट में क्या असर पड़ेगा, इसमें लाइट के पाथ में क्या असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ता है। बेसिकली जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इन विच व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो मतलब लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन अगर मैंने मीडियम को चेंज कर दिया तो लाइट का पाथ चेंज हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि जब एयर से मान लो वाटर में लाइट ट्रैवल किया तो एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर। इसी वजह से ना वाटर एयर से ज़्यादा डेंस होता है, ये बात सभी जानते हो। तो डेंसिटी जो होता है वाटर का वो एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से जब लाइट रेयर से डेंसर में ट्रैवल करता है तो लाइट पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और ज़्यादा इंटरैक्ट होने का मतलब है कि उसे अपने पाथ में डिस्टर्बेंस बहुत होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होगा। इस वजह से लाइट क्या होता है, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को कोरिलेट कर सकते हैं कि जनरली व्हेन वी गो आउट विद आवर बाइक, तो व्हेन देयर इज नो वन ऑन द रोड,
it becomes easy, the ride becomes very smooth, like we pass very straight in a straight manner. लेकिन जब बहुत भीड़ होता है तो क्या होता है, कभी इधर ब्रेक, कभी उस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में जाना. वाई? बिकॉज सिंस देयर इज अ पार्टिकल लाइंग इन वन ऑफ द पाथ, देयर इज अनदर पार्टिकल लाइंग इज ऑन वन ऑफ द पॉइंट, तब हम उस पॉइंट से तो ट्रैवल कर नहीं सकते. इसीलिए अगर ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा, हमारा पाथ चेंज होगा ना. सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी हो सकता है कि जब लाइट वेव्स मतलब लाइट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहा होता है तो ये क्या होता है, वाटर के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन हो जाता है उसका, और उस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसका पाथ में डेविएशन आ जाता है, मतलब वो लाइट बेंड कर जाता है. तो इसी बेंडिंग फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. राइट, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. वन मीडियम शुड बी ऑप्टिकली डेंसर दैन दी अदर मीडियम, जैसे कि वाटर एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है, इसीलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ. अगर नहीं होता, दोनों इक्वल होता तो नहीं होता. वो हम लोग कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शंस में पढ़ेंगे ही अभी, पहले इन सभी चीज़ों को समझ लिया जाए. तो ये बात क्लियर हो गया कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब एक बहुत ही अच्छा सा दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज a bit different from refraction, and that is what, reflection. Reflection क्या होता है कि reflection is bouncing back of light. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो मीडियम में इंटरफेस होता है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट. इस मीडियम में ये जो इंटरफेस है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्यों? अब तुम बोलोगे सर ये कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट है क्या इसमें जो ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये सब का बात कर रहे हैं. अरे नहीं भाई, ये वाटर है, ये एयर है. जब वाटर एयर एक दूसरे को सेपरेट करता है तो एक इंटरफेस बन जाता है, और वो इंटरफेस ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा शो करता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा बिहेवियर शो करता है, मतलब उसके आर पार लाइट आसानी से जा सकता है. बट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को ले लोगे, सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं तो क्या होगा, चेक करते हैं. तो जब लाइट को किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल कराओगे तो लाइट क्या होगा, इसे इंटरैक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरैक्ट करने के बाद क्या देखा गया, सिंस इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट तो लाइट तो यहाँ से पार होगा नहीं. लाइट विल पास इन द सेम मीडियम एट एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हम लोग इस केस में देखे थे रिफ्रैक्शन, तो यहाँ रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium. Bouncing back of light in the same medium. So this is the basic difference between reflection and refraction. Reflection में हमें दो मीडियम का ज़रूरत पड़ता है. Reflection में there is no need of another medium because light gets bounced back in the same मीडियम फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, मतलब जिस मीडियम से वो स्टार्ट हुआ था उसी मीडियम में वो ट्रैवल करके निकल गया. बट फ़र्क क्या है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो गिरा था उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो निकल जाएगा, मतलब जिस एंगल पे वो गिरा था उसी एंगल पे वो निकल जाएगा. यानी कि गिरने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ये बात तो सभी को क्लियर हो गया. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. क्लियर? चलिए मूव. तो हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया. फिर व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन होता क्यों है. क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल किया तो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से लाइट काफ़ी सारे पार्टिकल्स से इंटरैक्ट करते हैं. रेयर से डेंसर में जब ट्रैवल करेंगे तो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं लाइट पार्टिकल से. इसके वजह से लाइट अपने पाथ को डेविएट कर जाता है. ठीक है. और एक चीज़ और कि जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रैवल किया तो रेयर से डेंसर ट्रैवल करने में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रेयर मीडियम का है वो कम होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डेंसर मीडियम. इसी वजह से इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है. तो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि लाइट के पाथ में डेविएशन तो आएगा ही आएगा, उसके स्पीड में भी चेंज आ जाएगा.
जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ट्रैफिक में तो हमारा स्पीड कम होता है। तो डेंसर मीडियम वो ट्रैफिक की तरह होता है कि जब हम किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा इस मीडियम में। लेकिन इस मीडियम में ट्रैफिक कम है, इस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस फिनोमिना में वो कम है। इसके वजह से हमारे पास क्या होगा कि रेयर मीडियम में स्पीड जो होता है, वेलोसिटी बोल लो, स्पीड ही बोल लो, स्पीड क्या होता है, ये बहुत रेयर मीडियम में स्पीड जो हो गया ज़्यादा होता है, किसमें, रेयर मीडियम में, ठीक है। बट व्हाट अबाउट डेंसर मीडियम, तो स्पीड हमारे रेयर मीडियम में ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हमारे डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये समझ गए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीज़ों को साथ में ही पढ़ना चाहिए ताकि हम इस दोनों के कंसेप्ट को कोरिलेट कर सकें, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों में डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। कम टाइम में ज़्यादा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप चाहे तो वीडियो को स्लो करके या फिर पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, जो भी लेक्चर्स में बोला गया है उसे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए रिफ्रैक्शन होने के लिए, कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने का कंडीशंस क्या हो सकता है, पहला मीडियम शुड बी different, medium should be different, having its different optical densities। सबसे ज़रूरी बात ये कि जो मीडियम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए और ऑप्टिकल डेंसिटीज दोनों का सेम होना मतलब डिफरेंट होना चाहिए, सॉरी। क्यों, तभी जाकर के रिफ्रैक्शन होगा ना। हम लोग कंडीशंस को पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म को अभी हम पूरे लेक्चर में यूज़ नहीं किए, अभी करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने के मतलब दायरे को बढ़ाता है। अभी तक ये समझ गए तब हम समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। देखो, तो मीडियम शुड बी डिफरेंट हैविंग इट्स डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। मीडियम अलग होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी डिफरेंट। अब ये नया वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बोलोगे सर कंडीशन में आपने दो कंडीशन लिखा है, बट ये जो नया टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है। कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन में तो समझ में आ गया, दो मीडियम होना चाहिए, फिर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी डिफरेंट, दोनों का अलग होना चाहिए। बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो हम लोग को समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू बेंड लाइट। किसी भी मीडियम का हम उस एबिलिटी के बारे में बात करेंगे जिस एबिलिटी के तहत वो लाइट को बेंड कर सकता है।
तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इन मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में तो कुछ डेफिनेशन दे देता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट आर यू एबल टू एनालाइज और विजुअलाइज व्हाट इज इट्स फिजिकल मीनिंग? इस डेफिनेशन का फिजिकल मीनिंग तो नहीं समझ पाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना। तो उसको फिजिकली समझना जरूरी होता है ना। तो क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल मीडियम के उस एबिलिटी को बोलते हैं जिस एबिलिटी के तहत वो लाइट को बेंड कर सकता है। तो जैसे कि हम लोगों ने रेयर से डेंसर मीडियम का बात किया था, रेयर से डेंसर मीडियम का जब बात किया था, ये रेयर था, ये डेंसर मीडियम था। तो जब रेयर से लाइट ट्रैवल कर रहा था तो वो क्या डेंसर की तरफ बेंड कर गया था, ये था ना। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम का था सेकेंड मीडियम के कंपैरिजन में कम था। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल दैट इज कॉल्ड म्यू, दैट इज कॉल्ड म्यू। इसको म्यू पढ़ते हैं, बिल्ली वाला म्याऊ नहीं, म्यू। मू भी कोई कोई पढ़ते हैं लेकिन म्यू ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है। तो एम यू, म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। और हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम with that of speed of light in any medium, in any medium। मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो सभी को जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, c से डिनोट होता है। और लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम बी v। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय वेलोसिटी जो किसी भी मीडियम का होगा वो अननोन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। बट इसका फिजिकल मतलब क्या है? फिजिक्स पढ़ने का क्या मतलब है? अगर आप समझ नहीं रहे बात को तब फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ तो हम लोग टेक्निकली समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं। बट फिजिकल मतलब ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल मीडियम की उस एबिलिटी को बोला जाता है जिस एबिलिटी के तहत वो लाइट को बेंड कर सके। बात समझ में आया? यानी कि रेयरर से डेंसर में जब गया तो रेयरर में क्या देखा गया, लाइट बेंड नहीं हो रहा था, मतलब स्ट्रेट जा रहा था। और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, ये डेंसर में आ गया, तो यानी कि इसका जो एबिलिटी है लाइट को बेंड करने का ये ज़्यादा था ना। इसीलिए लाइट व्हेन ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम ये क्या हो गया, बेंड कर गया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंड करने की एबिलिटी को बोलता है। यानी कि एयर से ज़्यादा अच्छा लाइट कौन बेंड कर सकता है, वाटर। फिर तुम बोलोगे कि सर चलो ठीक है, एयर को हटा देते हैं या वाटर लगा देते हैं और नीचे ग्लास लगा देते हैं, तब फिर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कौन होगा? तो अभी ना बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो लाइट को उतना अच्छा बेंड कर सकता है, क्योंकि ये उसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जो जितना अच्छा बेंड कर पाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, इसलिए एयर के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है। लेकिन वहीं अगर एयर को वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए और वाटर को ग्लास से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब ऊपर वाटर नीचे ग्लास, तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में ग्लास जो है ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है ना, ज़्यादा हैवी होता है, यानी कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बात कर लो, दोनों ही क्या होता है, लगभग इक्वल जैसा होता है, डेंसिटी से ही डिफाइन होता है दोनों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ग्लास का वाटर कंपेरिजन ज़्यादा हो गया। तो नाउ ग्लास इस केस में डेंसर मीडियम हो गया और यहाँ पे जो वाटर रखा गया वो एक डेंसर मीडियम हो गया। इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान में रखना है कि एयर ही हर जगह रेयर और ग्लास वाटर ही हर जगह डेंसर या रेयर नहीं होगा। इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, इसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, जिसके तहत हम लोग दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो यह बात अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया। दो कंडीशन हम लोगों ने देखा कि पहला, देयर शुड बी टू मीडियम, तब रिफ्रैक्शन हो सकता है। दूसरा, बोथ द मीडियम शुड हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है, इसीलिए जब दो मीडियम होगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तभी जाकर के हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा और तभी रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है। और
क्या ऐसा कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा? अब आप बताइए, सोचिए। बहुत सिंपल है। अगर देखते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि लाइट इज फॉलिंग एट अ सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, बट यहाँ पे व्हाट अबाउट द लाइट फॉलिंग पैरेलल विद द नॉर्मल? नॉर्मल इसी में है और इसी के पैरेलल हमारा ये इंसिडेंट रे है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इस केस में वो क्या है? जीरो है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होता है ना, तो व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली, व्हेन लाइट falls normally, then there is no refraction. जब लाइट नॉर्मली फॉल होता है किसी भी इंटरफेस पे, तो देर इज नो इंटरेक्शन, या सॉरी इंटरेक्शन नहीं, देर इज नो रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो इंटरफेस होता है दैट शुड बी ओपेक, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पे इंटरफेस ट्रांसपेरेंट होता है ना, इस वजह से लाइट जब नॉर्मली फॉल करे तो वो क्या होगा? स्ट्रेट पार हो जाएगा, मतलब इट विल पास स्ट्रेट, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट तो बेंड हुआ ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, इट पास स्ट्रेट, इट पास स्ट्रेट। ये बात हम लोगों ने देख लिया। और अगर तुम पूछोगे कि व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में ये वाला जो सरफेस है इंटरफेस, ये क्या था? ओपेक था। तो अगर इसी एंगल पे, उसमें भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, इसी एंगल पे गिराया जाए तो क्या होगा? तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब उसी पाथ में क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होकर अपने ही सेम मीडियम में चला जाएगा। तो रिफ्लेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि जिस एंगल पे वो गिरता है उसी एंगल पे वो निकल जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट्स दैट वी स्टडीड राइट नाउ, we are here to understand laws of refraction and laws of reflection। ठीक है, तो laws of refraction जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो, थोड़ा देखा जाए। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये जानना बहुत ज़रूरी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है? चलो पहले वाले कंडीशन को हम लोग सपोज करते हैं, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और हम लोग को पता है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में कम है, ये बात हम लोग सभी को जानते हैं। तो अब क्या होगा कि पहले वाले केस को कंसिडर करते हैं। So this is the angle of incidence, all right, in place of passing straight it bend towards the normal, so this is the angle of refraction। ये बात सभी को जानते हो। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, ऑल राइट। ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ये लाइन क्या होता है? नॉर्मल लाइन, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं, नॉट रे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या बोलता है लॉ? द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। मतलब द इंसिडेंट रे दिख रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे दिखा,
एंड द नॉर्मल, ये ऑल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब इस जगह पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने यहाँ पे इसे लिखा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये सारे एक ही प्लेन में है। ये हमारा प्लेन क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो मतलब एक ही प्लेन में सारे लाई करते हैं। दिख रहा है साफ क्लियर? कोई तीसरा प्लेन का यहाँ सवाल, मतलब कि तीसरे डायमेंशन का यहाँ सवाल नहीं उठता यहाँ। तो यानी कि ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा पहला हो गया। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी होगा। पहला लॉ दोनों में सेम है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, उस केस में क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन तो होता नहीं, रिफ्लेक्शन होता है वहाँ। तो द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो भी वही हो जाएगा। फिर दोनों में अलग क्या है दोनों का लॉ में? सेकेंड वाला, जो दोनों का सेकेंड पढ़ेंगे। तो ये तो पहला था जो बेसिक था, ये बात क्लियर हो गया होगा। सेकेंड देखते हैं। हमारा सेकेंड, तो सेकेंड क्या कहता है, थोड़ा इसको और क्लीन कर ले, नया बोर्ड है यार। सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड हमारा बोलता है रिफ्रैक्शन में, वो रिफ्रैक्शन में क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस with respect to the sine of angle of refraction is constant. Do you know what is this constant? This constant is nothing but the refractive index. कैसे? इसको देखते हैं हम लोग। इसको मिटाएं, ये समझ गए होंगे। क्या बोलता है स्टेटमेंट? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूं ही नहीं लिखना होता है, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि लाइट रेयर से डेंसर की तरफ बेंड किया ना, इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रेट, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये सभी को देखे होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर ये क्या है, बहुत कंफ्यूज होता है। देखो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखते हैं हम लाइट किधर से स्टार्ट हुआ है, मीडियम 1 से। मीडियम 1 से कहाँ गया है? मीडियम 2 में। यानी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे प्री डोमिनेंट है? वाटर का, मतलब डेंसर मीडियम का। तो इसीलिए उस केस में क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जहाँ से लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ है उसका सिंबल सब प्रीफिक्स में जाएगा, और जहाँ पे लाइट खत्म हुआ है वो क्या हो जाएगा? सफिक्स में आ जाएगा। तो मतलब हमारा लाइट रेयर से डेंसर में आया, मीडियम 1 से 2 में आया ना, तो कहाँ पे खत्म हुआ? 2 पे, तो उसका सिंबल पहले, और कहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसका सिंबल पहले और उसका सिंबल बाद में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर वही चीज उल्टा होता, साइन आर बाय साइन आर आई करोगे अगर, ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। कब? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाएगा तो बेंड हो जाएगा, तब इस केस में ऐसा लिख देंगे। बात आ रहा है समझ में? तो अगर इस दोनों को मान लो मल्टीप्लाई किया जाए, रिफ्रैक्शन एट 2 मीडियम इस टॉपिक को कह सकते हो, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इनटू, इसको ऐसे लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। आया? ये दोनों कट कर दिए तो क्या बचा हमारे पास? 1। यानी कि
ये जो 1 आया इसका मतलब क्या हुआ पता है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब जब किसी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? दैट बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको कैसे फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों का वैल्यू क्या आया? 1 आया ना। तो इस दोनों के रिजल्ट को 1 आया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर मान लो कि लाइट यहाँ से ट्रैवल करके इस मीडियम में आया और यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टिंग मीडियम रख दिया जाए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, लाइट इसे टकरा के आएगा, जिस तरह से आया था लाइट उसी तरह रिफ्लेक्ट होकर के वापस से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। मतलब वो जिस पाथ से जिस तरह आया था वो उसी पाथ में उसी एंगल पे वापस निकल जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। दोनों का जब प्रोडक्ट किया गया तो क्या है हमारे पास? 1। वेरी टायरिंग, हाँ कॉन्सेप्ट है, समझना होगा, मेहनत तो करना होगा। तो ये बात हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गया? पहला टॉपिक था हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे क्लियर हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इन सभी के रिलेशन के बारे में कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो इन सब पे क्या असर पड़ता है, क्या वेवलेंथ, स्पीड, रिफ्रैक्शन पे क्या असर कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफर कर जाए। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये बात क्लियर हो गया? लेट्स रब इट। अब हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों के रिलेशन हम लोग देखना है हम लोगों को। तो क्या हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो मान लो किसी भी मीडियम में वेलोसिटी क्या है? कम है। तो वेलोसिटी कम होना क्या दर्शाता है? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले स्टार्टिंग में कि कहीं पे वेलोसिटी किसी मीडियम में कम होने का मतलब है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, और उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, तभी तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी कम जहाँ वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी कि डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होता है लाइट का वो कम हो जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। मतलब when the refractive index is more than the velocity is what? less। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, इसका उल्टा हम कर सकते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रेयर मीडियम में हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है? हमारे पास एक रिलेशन होता है, हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में भी पढ़े होगे तुम लोग, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। मतलब वेलोसिटी, उसका वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी, इस तीनों के लिए एक इक्वेशन होता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इस v के जगह हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? c इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये हमारे स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज हो गया यहाँ पे। तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और v इक्वल टू सी लैम्डा। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे c है, c को छोड़ दो एज इट इज, v के वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? c बाई वी है ना, ये c बाई वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या होता है? दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी
and this is the symbol of wavelength. It is called lambda, 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 और इसको पढ़ते हैं न्यू, NU, न्यू, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अब हमारे पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन नया डेवलप हो गया, C बाय न्यू लैम्डा। तो पहला तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या असर करता है, वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मटेरियल मीडियम का, ऑब्वियस सी बात है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा किसी भी मटेरियल मीडियम का, ये क्लियर हो गया। अब आता है वेवलेंथ पे, यार वेवलेंथ पे आता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी ध्यान से देखोगे तो वेवलेंथ अगर कम है, देखो इस दोनों का इन्वर्स रिलेशन है दोनों केस में, देख रहे हो, इसका इससे, तो जब वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर लाइट कोई डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को तुम रिफ्रैक्शन में इन्वॉल्व कराओगे तो जिस लाइट के वेवलेंथ कम होंगे उसके केस में मटेरियल मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो वायलेट कलर है और रेड कलर है, दोनों में बेंडिंग किस में ज़्यादा होगा, जरा सोच के बताओ इस कंसेप्ट के बेसिस पे। तो इसको सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये सोचो कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, तो विबग्योर जानते हो ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। इसमें रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का और वायलेट सबसे कम वेवलेंथ का है। तो किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड का, यानी कि लैम्डा रेड और यहाँ पे लैम्डा वी। तो यहाँ पे लैम्डा वी और लैम्डा रेड में किसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है, रेड का। तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम में, मान लो एक ही मीडियम है, एक बार रेड लाइट को मारा गया रिफ्रैक्शन के लिए और एक बार वायलेट लाइट को इंसिडेंट किया गया, तो दोनों में बेंडिंग किस में ज़्यादा होगा, बेंडिंग तो दोनों में होगा, ये बात तो क्लियर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, किस में ज़्यादा बेंड होगा, विच लाइट विल बेंड बाय हाउ मच अमाउंट, बाय हाउ मच एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसके लिए उसी सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कम वेवलेंथ वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी कि वायलेट इसका वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन कम है तो इसके लिए उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा और वायलेट लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा, इसलिए वायलेट लाइट क्या हो जाएगा, बेंड विल मोर। इसलिए हम कह सकते हैं वायलेट लाइट विल बेंड मोर। आया बात समझ में, क्लियर है एकदम कंसेप्ट। ये बहुत ज़रूरी बात है, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, हमारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, इन सब चीज़ों में बहुत पूछा जाता है। मे भी तुम्हारे बोर्ड्स में भी इस बार पूछे, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पलटोगे तो काफ़ी सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं जो इसके कंसेप्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जो कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट को क्लियर रखना होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट था ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, समझ गए होगे। इस चीज़ को बैठ के सभी को एनालाइज करो आप, जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाए तब आप बैठ के इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब मैथमेटिकल एक रिलेशन डेवलप करते हैं। चौक कहाँ गया, आ जाओ। मैथमेटिकल रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में देखते हैं। देखो दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम एंड इट्स वेलोसिटीज, ठीक है। देखो हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium is what, refractive index of second medium with respect to first इस तरह से होता है, और refractive index of first medium with respect to second is what, mu1 by mu2, ये जानते हैं। इसके साथ साथ हम लोग और क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ठीक है, यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी इन दैट मीडियम। एकदम क्लियर बात है, ये समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या है वो, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटीज के टर्म में भी हम लोग दिखाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है या फिर ये है, तो इसको वेलोसिटी के टर्म में कैसे दिखा सकते हैं। हमको अगर स्पीड ऑफ लाइट को एलिमिनेट करना हो, कर भी सकते हैं, क्योंकि हर मीडियम में ये जो सी का वैल्यू है ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम चलो मानते हैं ये सेकेंड मीडियम जो है ये वाटर है और ये जो फर्स्ट मीडियम है ये एयर है। इस केस में कोई दूसरा मीडियम लेते हैं, एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको चेंज किया। अब वाटर और ग्लास, ये ग्लास है और ये क्या है, वाटर है, दो मीडियम हो गया ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ आ गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यहाँ लिख दिया, आया ना। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो सेकेंड मीडियम क्या है यहाँ पे, वाटर, और यहाँ पे क्या है सेकेंड मीडियम, ग्लास, है ना। तो मानते हैं इस दोनों इक्वेशंस को यूज करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस बाय ईच अदर या फिर कह सकते हो 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, हम लोग के पास क्या आएगा, म्यू जी डब्ल्यू बाय म्यू डब्ल्यू ए। तो हमारे पास जी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, सी बाई वी जी बाय सी बाय वी डब्ल्यू। ऊपर कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना। तो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू बाय वी जी। तो वेलोसिटी के टर्म में हमारे पास ये आ गया ना, आया कि नहीं आया। इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली पढ़ना होता है ताकि इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन था रिफ्रैक्शन और उसके कई सारे कंडीशंस पे, कई सारे फैक्टर्स पे जिन पे ये डिपेंड करते हैं, है ना। ये सारे चीज़ों को बैठ करके एक नोट्स के फॉर्म में बनाना है आप लोगों को, और सभी को अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही एक चैप्टर मतलब कंसेप्ट कंप्लीट होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा प्रिज्म को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में जितना भी हम लोगों ने जाना, जितना भी सीखा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी बैठिए कॉपी पेन लेकर के और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँगा और आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करूँगा। इससे क्या होगा कि एक स्किल जो होता है वो आप लोगों में डेवलप होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को फील कर रहे हैं कि मेरा अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में उसको घबराना नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर आप जो मोस्ट प्रायोरिटी, जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उन सभी को भी अगर आप पहले कर लेते हो, जैसे कि हमारे पास हो गया साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर लाइट हो गया, है ना, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, फिर और एक दो चैप्टर है, बट ये जो 3 से 4 चैप्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ो सबसे पहले, इसलिए मैंने ऑप्टिक्स कराया, उसके बाद साउंड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फिर हीट चैप्टर भी एक है। तो ये 4 चैप्टर बहुत ही बैकबोन है आपके बोर्ड्स के चैप्टर्स में, तो ये चारों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझना है। इसीलिए यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि रिफ्रैक्शन के बारे में और कुछ बचा होगा। इसके बाद प्रिज्म पढ़ूंगा। हाँ, रिफ्रैक्शन का एक और फिनोमिना है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल को भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमारा कंसेप्ट यहीं पे आके ख़त्म होता है। इसके बाद अब हमारा जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं है। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए ही कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहिए एक बार में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। गुड लक।